Good afternoon, students. As we know, the presentations are going on, and today there is Garima's turn. So, Garima is going to present her PowerPoint presentation, and the topic is Theory of Intelligence, Two-Factor Theory, and Multi-Factor Theory. Okay, Garima, start. Good afternoon, ma'am, and all my dear classmates. I, Garima Mishra, student of B.Ed first year, Department of Education, CSJM University, Kanpur. Firstly, I would like to welcome you all. Today, I am going to present a PowerPoint presentation of paper 3, that is Psychological Perspectives of Education, on the topic of Theories of Intelligence, Two-Factor and Multi-Factor Theories. मतलब आज मैं आप लोगों के सामने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करूंगी और उसका टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत, दो कारक और बहुकारक सिद्धांत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी in this presentation the topics we will discuss, and these are introduction of intelligence, two-factor theory of intelligence and its educational implications and relevance, then criticism of two-factor theory, then multi-factor theory of intelligence, factors or attributes of intelligence, forms of intelligence proposed by Thorndike, and last is educational implications of multi-factor theory. So first of all we will discuss the introduction of intelligence. मतलब हम लोग सबसे पहले बुद्धि के परिचय देखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन. Intelligence is one of the most popular psychological terms used in everyday life. बुद्धि, इंटेलिजेंस को हिंदी में बुद्धि कहते हैं और जो बुद्धि शब्द है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले सबसे लोकप्रिय मनोवैज्ञानिक शब्दों में से एक है. The word intelligence is derived from the Latin word intelligere, which means to comprehend or perceive. मतलब जो इंटेलिजेंस शब्द है वो लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है समझना या अनुभव करना. Intelligence is an individual's capacity to act purposefully, think rationally, and deal effectively with his or her environment. It is an innate cognitive ability. मतलब कि बुद्धि एक व्यक्ति की उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तर्कसंगत रूप से सोचने और अपने वातावरण से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता है. उसी को बुद्धि कहा जाता है और यह बुद्धि एक जन्मजात संज्ञानात्मक क्षमता है, मतलब कि ज्ञान संबंधी क्षमता है. मतलब बुद्धि को डायरेक्टली नॉलेज से रिलेट किया गया है. The expression of intelligence is not limited to any particular activity, domain, or context. Rather, it is manifested in every human activity. मतलब कि बुद्धि की अभिव्यक्ति किसी विशेष गतिविधि, डोमेन या संदर्भ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हर मानवीय गतिविधि में प्रकट होता है. For long, the study of intelligence was confined to the cognitive domain. लंबे समय तक बुद्धि का अध्ययन ज्ञान संबंधी क्षेत्र तक ही सीमित था, पर अब मनुष्य जो भी कार्य करता है उन सब में बुद्धि का बहुत महत्व माना जाता है. Now, it is believed that intelligence is not a single entity or having single dimension. Rather, it has multiple dimension or aspects. साथ ही साथ अब यह भी माना जाता है कि बुद्धि सिर्फ कोई एक इकाई ही नहीं है, बल्कि इसके कई अहम और पहलू हैं. Now we will discuss about different approaches with which different psychologists investigated intelligence. मतलब कि बहुत सारे ऐसे विभिन्न मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अलग अलग दृष्टिकोणों के साथ कई जांच किए और उसमें से दो दृष्टिकोण निकाले उन्होंने,
जिससे उन्होंने बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बताया। सो फर्स्ट अप्रोच इज साइकोमेट्रिक अप्रोच। This approach focuses on measuring differences in intellectual abilities. According to this, intelligence is the ability to learn in an abstract manner or to think or adapt to his or her environment. मतलब कि ये जो साइकोमेट्रिक दृष्टिकोण ढूंढा गया, इसमें ऐसा था कि यह दृष्टिकोण बौद्धिक क्षमताओं में अंतर को मापने पर केंद्रित है। इसमें अंतर को नापा जाता है। इसके अनुसार बुद्धि एक अमूर्त तरीके से सीखने या सोचने या अपने वातावरण के अनुकूल होने की क्षमता है। Theories of intelligence like two-factor theory and multi-factor theory is related to this approach. मतलब इस साइकोमेट्रिक जो दृष्टिकोण ढूंढा गया है, इसमें दो कारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत जैसे बुद्धि के सिद्धांत संबंधित हैं इस दृष्टिकोण से। Other approach is information processing approach. This approach goes one step further by focusing on cognitive processes underlying the intellectual abilities. मतलब कि ये जो दृष्टिकोण है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, अच्छा इसे हिंदी में सूचना प्रसंस्करण दृष्टिकोण भी कहा जाता है, और इसमें बौद्धिक क्षमताओं में अंतर्निहित जो भी ज्ञान संबंधी प्रक्रिया हैं उन पर ध्यान केंद्रित करके यह दृष्टिकोण एक कदम आगे हमें ले जाता है। और इस दृष्टिकोण का उपयोग करने वाला सिद्धांत जो है वो स्टेनबर्ग का त्रिआर्किक सिद्धांत है। मतलब the theory which uses this approach is Robert Sternberg's triarchic theory. Now we will study about the theories of intelligence. मतलब अब यहाँ से हम लोग बुद्धि के सिद्धांत के बारे में समझेंगे। So psychologists have attempted to understand the structure of intelligence for which they have formulated the theories. So let us try to discuss some of the following theories. मतलब कि मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की संरचना को समझने का प्रयास किया है और जिसके लिए उन्होंने कुछ सिद्धांत तैयार किए हैं, तभी उन्हें समझ में आया कि बुद्धि की संरचना किस प्रकार हुई है और क्या है। अब हम लोग इसमें से कुछ सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट इज टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिससे कि हिंदी में बुद्धि का दो कारक सिद्धांत भी कहते हैं। द इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स स्पीयरमैन in 1904 proposed his theory of intelligence called two-factor theory of intelligence. मतलब कि एक अंग्रेजी मनोवैज्ञानिक थे चार्ल्स स्पीयरमैन, उन्होंने 1904 में बुद्धि के अपने सिद्धांत का प्रस्ताव रखा और जिसे उन्होंने नाम दिया था दो कारक सिद्धांत। Spearman presented his famous two-factor theory of intelligence in the work entitled The Two-Factor Theory of Intelligence, published in 2 volumes. मतलब कि स्पेयरमैन जी ने 2 खंडों में प्रकाशित द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस नामक अपने काम में बुद्धि के अपने प्रसिद्ध दो कारक सिद्धांत के बारे में बताया था, उसमें प्रस्तुत था। In this work, he was concerned with describing the nature of intelligence and how far it may be tested. मतलब कि इस काम में वह बुद्धि की प्रकृति का वर्णन करने और इसे कितनी दूर तक परखा जा सकता है इसका वर्णन करने से संबंधित था। According to him, a current approach to intelligence will be federative, that is an eclectic approach which is better than other approaches. मतलब कि उनके अनुसार ऐसा था कि बुद्धि के लिए जो उस समय का वर्तमान दृष्टिकोण था वो संघात्मक होगा, यानी एक उदार दृष्टिकोण जो कि अन्य दृष्टिकोणों से बेहतर है, वो उनके अनुसार था। उन्होंने कहा कि जो मैं सिद्धांत दे रहा हूँ बहुकारक मतलब दो कारक जो सिद्धांत वो और दृष्टिकोणों से ज्यादा बेहतर है। According to him, intellectual abilities are comprised of two factors, namely the general ability known as G factor and
the specific abilities known as S factors. उनके अनुसार बौद्धिक क्षमता को दो कारकों से बनी होती है। फैक्टर्स जिन्हें कारक भी कहते हैं हिंदी में, तो दो कारक से बनी होती है। पहला होता है जी कारक, जिसे कि सामान्य क्षमता के रूप में जाना जाता है, और दूसरा होता है एस कारक, जिसे विशिष्ट क्षमताओं के रूप में जाना जाता है। The performance by the individual is determined by the G factor and the S factors. मतलब कि जो व्यक्ति है उसके द्वारा जो भी प्रदर्शन किया जाता है वो G कारक और S कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। The total intelligence of the individual is the sum total of the G factor and the S factors. मतलब कि चार्ल्स स्पेयरमैन जी कहते थे कि व्यक्ति की जो कुल बुद्धि है अगर हमें उसे मापना है तो उसका क्या था कि वो जी कारक और एस कारक जो भी उस व्यक्ति में प्रेजेंट है वो उन सब का योग है। द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टास्क डिपेंड ऑन द जी फैक्टर और जनरल एबिलिटी एंड द पर्टिकुलर एस फैक्टर और स्पेसिफिक एबिलिटी। मतलब कि किसी भी विशेष कार्य का प्रदर्शन जो है वो जी कारक जिसे सामान्य क्षमता कहते हैं और विशेष एस कारक जिसे विशिष्ट क्षमता कहा जाता है उस पर निर्भर करता है। तो अब हमें ये पता चल गया कि दो फैक्टर्स होते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। तो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जी फैक्टर, जी कारक की विशेषताएं। फर्स्ट इज इट इज यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी, मतलब कि यह सार्वभौमिक जन्मजात क्षमता है। नेक्स्ट इज इट इज जनरल मेंटल एनर्जी, मतलब यह सामान्य मानसिक ऊर्जा है। थर्ड इज इट इज कांस्टेंट, मतलब जो जी कारक होते हैं वो स्थिर है। द अमाउंट ऑफ जी डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मतलब कि हर व्यक्ति में जो जी कारक होता है उसकी मात्रा अलग अलग होती है। एंड नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड इन एवरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि ये जो जी कारक का उपयोग है इसका जीवन की हर गतिविधि में इसका उपयोग किया जाता है। ग्रेटर द जी इन एन इंडिविजुअल ग्रेटर इज हिज सक्सेस इन लाइफ, जो इसकी विशेषता है वो ये भी है कि किसी व्यक्ति में जितनी भी जी की मात्रा जितनी ज़्यादा अधिक होती है तो जीवन में उस व्यक्ति की उतनी ही सफलता उसे अधिक मिलती रहती है। अच्छा, हम लोग और इससे अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जी फैक्टर जो है वो हमारे जीन्स से हमें एक्वायर होती है, तभी उसे इनबॉर्न एबिलिटी भी कहते हैं। और ये कभी भी जैसे मतलब कहते हैं कि एजुकेशन, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से ज़्यादा चेंज नहीं हो सकती है क्योंकि ये इनबॉर्न होती है इसलिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस फैक्टर, जो कि फर्स्ट है इट इज लर्नड एंड एक्वायर्ड इन द एनवायरनमेंट। ये जो एस फैक्टर होती है वो ये है, उसकी विशेषता ये है कि ये पर्यावरण में सीखा और अर्जित किया जाता है, मतलब कि ये बाय बर्थ नहीं होता है। नेक्स्ट इज इट वेरीज फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन द सेम इंडिविजुअल, मतलब कि ये एक ही व्यक्ति में गतिविधि से गतिविधि में भिन्न होता है। इंडिविजुअल्स डिफर इन द अमाउंट ऑफ एस एबिलिटी, मतलब कि हर व्यक्ति में एस क्षमता की मात्रा भिन्न होती है। और इसमें जैसे कि इसे स्पेसिफिक इंटेलिजेंस कहा जाता है, जैसे कि कई लोगों में प्रेजेंट होता है, जैसे कि बहुत लोग पेंटिंग बनाने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग सिंगिंग में अच्छे होते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। तो वो जो एक अलग क्वालिटी जो आ जाती है, एबिलिटी जो आ जाती है, उसको एस फैक्टर माना जाता है, स्पेसिफिक एबिलिटी। G factor represents native intelligence. Thus, when we respond to any situation or perform an intellectual task, our general mental ability or G factor is mainly responsible for it, and our specific ability in that particular task is responsible for the rest. मतलब कि जो जी कारक होता है
वो हमारा पैदाइशी बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब पहले से ही हमारे अंदर होता है, जन या फिर कह सकते हैं कि जन्मजात होता है। इस प्रकार जब हम किसी भी स्थिति का जवाब देते हैं या कोई हम बौद्धिक कार्य करते हैं, तो हमारी जो सामान्य मानसिक क्षमता है, जिसे जी कारक कहते हैं, वो मुख्य रूप से उसके लिए जिम्मेदार होता है। और उसमें जो भी हम लोग विशेष कार्य जो करते हैं, वो हमारी विशिष्ट क्षमता, मतलब एस फैक्टर, जिम्मेदार होती है उसके लिए। There are a large number of specific abilities, such as ability to draw inferences, ability to complete sentences, ability to code message, etc. मतलब कि यहाँ बड़ी संख्या में विशिष्ट क्षमताएं भी होती हैं हमारी बुद्धि में, जैसे कि अनुमान लगाने की क्षमता, वाक्यों को पूरी करने की क्षमता, संदेश को कोड करने की क्षमता आदि। This theory is also called as eclectic theory. इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को हम लोग चयनशील सिद्धांत भी कहते हैं। Different individuals differed both in their G as well as S factors. अब हम लोग एक इंडिविजुअल के, अगर इंडिविजुअल को देख रहे हैं तो उसमें ऐसे कि अलग अलग व्यक्ति अपने G और S दोनों कारकों में भिन्न होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, an individual's performance in literature is partially due to his general intelligence and partially due to some specific aptitude for his language, that is G plus S1। मतलब कि अब इस सिद्धांत को समझने के लिए अगर हम लोग एक उदाहरण लें तो जैसे कि देखें कोई साहित्य, अगर हम लोग कोई एक सब्जेक्ट लिया जाए, चाहे उसको इंग्लिश मतलब अंग्रेजी साहित्य भी ले सकते हैं या हिंदी साहित्य, कुछ भी माना जाए। जैसे अगर हम लोग अंग्रेजी साहित्य मान रहे हैं तो उसमें ऐसा है कि अगर एक व्यक्ति का प्रदर्शन आंशिक रूप से जो होता है उस साहित्य में, वो उसकी सामान्य बुद्धि के कारण होता है, और आंशिक रूप से मतलब आधे तौर पर उसके भाषा के लिए जैसे कुछ विशिष्ट योग्य है उसके अंदर, तो उसके कारण होता है, जिसे कि हम लोग G प्लस S1 के नाम से मान सकते हैं। जैसा कि अगर हम लोग इंग्लिश लिटरेचर मान रहे, तो पहले तो हम देखेंगे अगर उस बच्चे का उसे कार्य दिया गया है तो वो बच्चा करता है या नहीं करता उस कार्य को, अगर कर रहा है तो सही से कर रहा है कि नहीं, ये उसका आया जनरल एबिलिटी में कि उसकी जनरल एबिलिटी क्या है। अगर अच्छी है तो वो उस कार्य को करेगा, अगर नहीं है तो वो ऑनेस्टी से नहीं करेगा। और जो हमारा S1 होता है, स्पेसिफिक एबिलिटी होता है, वो जैसे कि लिटरेचर है, अब वो इंग्लिश सब्जेक्ट का है, तो अब अगर उस इंडिविजुअल में, उस बच्चे में अगर हम लोग ले रहे हैं, तो उस बच्चे में अगर इंग्लिश लैंग्वेज की ज़्यादा नॉलेज है तो उसमें स्पेसिफिक एबिलिटी है कि उसमें लिटरेचर की तो नॉलेज है ही, प्लस उसमें इंग्लिश लैंग्वेज की भी नॉलेज है। तो उसका जो हम लोग टोटल इंटेलिजेंस माने देखेंगे, वो देखेंगे G प्लस S1 के एग्जाम्पल में। अब नेक्स्ट होता है, अगर एक सब्जेक्ट हमने लिटरेचर ले लिया, अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट इन मैथमेटिक्स देख रहे हैं, सो इस परफॉर्मेंस इज मे बी द रिजल्ट ऑफ G प्लस S2, मतलब कि गणित में उसका प्रदर्शन G प्लस S2 का परिणाम हो सकता है कि पहले तो उसका वो गणित का कार्य ठीक से कर रहा है कि नहीं, वो उसकी जनरल एबिलिटी, और कर रहा है तो अगर उसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है या वो मल्टीप्लिकेशन या एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत फास्टली कर लेता है, तो वो उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी हो गई। नेक्स्ट अगर हम लोग सब्जेक्ट लेते हैं जैसे कि ड्राइंग, इन ड्राइंग it may be due to G plus S3, and in social science it may be due to G plus S4 and so on। ऐसे हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमने देखा लिटरेचर का, अब मैथ्स का देखा, अब ड्राइंग में अगर है तो जैसे कि बहुत बच्चों को ड्राइंग नहीं पसंद होती है, वो लोग इंटरेस्ट से नहीं करते या बहुत सारे बच्चे करते ही नहीं है, तो हम लोग जिस बच्चे का एग्जाम्पल दे रहे हैं उसका अगर लेते हैं तो अगर देख रहे हैं कि वो बच्चा बहुत अच्छे से ड्राइंग कर रहा है, तो उसमें क्या हुआ, वो उसकी जनरल एबिलिटी हो गई। अब वो बच्चा जिसे अगर उसे कोई सीनरी बनाने को दी गई है और वो बच्चा अगर सीनरी में बहुत ही अच्छी, जैसे सब बच्चे बना रहे हैं सीनरी, लेकिन उस बच्चे का, जिस बच्चे का हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर उस बच्चे ने जैसे सीनरी में क्या होता है, पहाड़ बना दिया, नदी बना दी, अब उस बच्चे ने एक्स्ट्रा इफेक्ट्स के लिए कुछ
अपनी एबिलिटी से, अपनी स्पेसिफिक एबिलिटी से जो उसके अंदर है, उसने कुछ बर्ड्स बना दिए, एक अच्छा सा ट्री बना दिया, एक छोटा सा हाउस बना दिया, वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है, उसके अंदर वो स्पेसिफिक एबिलिटी है, वो उसे और अच्छी तरीके से किए जा रहा है। अब एक और हम लोग सब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले रहे हैं उसी बच्चे का, वो है सामाजिक विज्ञान, मतलब सोशल साइंस। तो अब हम लोग उसको कैसे देख रहे हैं, उसको हम लोग G+S4 के उसमें ले रहे हैं कि जी जो उसकी जनरल एबिलिटी है, वो बच्चा कैसे कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसका कार्य, और S4 जो उसकी स्पेसिफिक एबिलिटी में आ जाएगी, ये उसके अंदर नेक्स्ट एबिलिटी है कि अगर उसे बहुत मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत अच्छे मतलब क्रिएटिवली वो बहुत आंसर्स अच्छे से लिख सकता है, समझ बहुत जल्दी जाता है। जैसे बहुत बच्चों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं लगता लेकिन उसको बहुत इंटरेस्ट है, तो ये सब उसकी क्या हो गई, स्पेसिफिक एबिलिटी। तो अब ये हम लोग कह सकते हैं कि दस द फैक्टर जी इज प्रेजेंट इन ऑल स्पेसिफिक एक्टिविटीज। तो मतलब हमने ऐसा देखा कि इसी प्रकार से जो जी कारक है, उसकी जो सामान्य क्षमता है, वो सभी विशिष्ट गतिविधियों में उसके मौजूद है। द एबिलिटी और इंटेलिजेंस ऑफ सच एन इंडिविजुअल, that is symbolized as A, so it will be represented by the following equation, that is G plus S1 plus S2 plus S3 plus so on। मतलब कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारी जो बुद्धि की जो क्षमता होती है, वो इस तरीके से होती है कि जो हमारे अंदर जनरल एबिलिटी है प्लस जो हमारे अंदर स्पेसिफिक एबिलिटी है, वो उन सबका टोटल सम होता है। तो वही हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की क्षमता या बुद्धि हम लोग इस समीकरण के द्वारा दर्शा सकते हैं कि पहले तो उसकी जनरल एबिलिटी जो हर स्पेसिफिक कार्य में कॉमन होती है कि वो बच्चा वो कार्य कर रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद उसके अलग अलग बहुत सारी जो भी उसके अंदर स्पेसिफिक एबिलिटीज होती हैं, उन सब को टोटल उन सब का किया जाता है। फिर हम लोग को इंटेलिजेंस पता चलती कि उस बच्चे के अंदर कितनी बुद्धि है, उसकी बुद्धि की क्षमता क्या है। Next, we will discuss about educational implications and relevance of two-factor theory of intelligence. So, मतलब कि अब हम लोग ये देखेंगे कि जो बुद्धि का जो दो कारक सिद्धांत है, उसका शैक्षिक आशय क्या है और उसकी योग्यता क्या है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। So first is the theory gives a better insight to the theory about the nature of intelligence। मतलब कि ये जो दो कारक सिद्धांत है बुद्धि का, वो सिद्धांत शिक्षक को बुद्धि की प्रकृति के बारे में बेहतर जानकारी देता है। सेकेंड इज द जनरल एबिलिटी डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मतलब कि जो सामान्य क्षमता होती है व्यक्ति में, उसमें अलग अलग होती है, हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। थर्ड इज द स्पेसिफिक एबिलिटीज ऑल्सो डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब जो विशिष्ट क्षमताएं होती हैं, वो भी व्यक्तियों में अलग अलग भिन्न होती हैं। Next is S factor varies in degrees, therefore it can be modified by learning और habitual training। मतलब कि जो S कारक जो होते हैं वो विभिन्न स्तरों में भिन्न होती है, इसीलिए सीखने या आदतन प्रशिक्षण द्वारा इसे संशोधित किया जा सकता है, क्योंकि वो हमारे अंदर जन्मजात नहीं होती है। अगर हम अच्छे से कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं, तो हम उस अपनी एस फैक्टर की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है इस कार्य की, उसे बढ़ा सकते हैं, अलग अलग चीजें सीख सकते हैं जिसमें हमें और अलग अलग स्पेसिफिक एबिलिटीज हमारे अंदर आती जाएंगी। नेक्स्ट, fifth point, a child requires different amounts of G and S factors for achieving success in different subjects। मतलब कि एक बच्चे को विभिन्न विषयों में सफलता प्राप्त करने के लिए अलग अलग मात्रा में G और S कारकों की आवश्यकता होती है।
Sixth is we require a high quality of G factor for our success in life. मतलब कि हमें अपने जीवन में अपनी सफलता के लिए उच्च गुणवत्ता वाले जी कारक की आवश्यकता होती है, क्योंकि मतलब जितना अच्छा हमारी जनरल एबिलिटी होगी उतना ही हमारा विकास होगा, हमारा डेवलपमेंट होगा, उतनी ही हमें सक्सेस मिलती जाएगी। सेवेंथ इज बोथ जी एंड एस फैक्टर्स हैव अ हाई कोरिलेशन। मतलब कि जो जी और एस दोनों कारक हैं उनके बीच एक बहुत ही उच्च संबंध होता है। लास्ट इज दिस थ्योरी कुड बी यूज्ड टू गाइड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेट ऑफ एबिलिटी टेस्ट। मतलब कि हम लोग इस दो कारक सिद्धांत का उपयोग मार्गदर्शन और क्षमता परीक्षण के एक सेट के निर्माण के लिए भी किया जा सकता है। Now we will see criticism of two factor theory of intelligence। मतलब कि बुद्धि के दो कारक सिद्धांत की आलोचना, क्योंकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इस दो कारक सिद्धांत का बहुत आलोचना भी की। तो वो क्या कॉमन जो आलोचना थी वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट इज Spearman said that there are only two factors expressing intelligence, but as seen there are not only two but several factors such as G, S1, S2, S3 and so on etc। मतलब कि पहले तो स्पेयरमैन जी ने कहा कि बुद्धि को व्यक्त करने वाले केवल दो कारक हैं, लेकिन जैसे कि हम लोग आगे हमने जो एग्जाम्पल देखा उसमें हम लोगों ने देखा कि केवल दो नहीं है फैक्टर्स, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि जी फैक्टर, S1, S2, S3 एंड सो ऑन एक्सेट्रा। अब जो सेकंड क्रिटिसिज्म था वो क्या था? वो था कि अकॉर्डिंग टू स्पेयरमैन ईच जॉब रिक्वायर्स सम स्पेसिफिक एबिलिटी। It implied that there was nothing common in the jobs except a general factor, and professions such as those of nurses, compounders, and doctors could not be put in a group. In fact, the factors such as S1, S2, S3 are not mutually exclusive. They overlap and give birth to certain factors. मतलब कि स्पेयरमैन जी के अनुसार ऐसा था कि प्रत्येक कार्य के लिए कुछ विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकता होती है, जैसा कि वो मानते थे। इसका तात्पर्य यह था कि जैसे अगर नौकरियां हैं उनमें कोई एक सामान्य कारक जो होता है उसके अलावा कुछ भी सामान्य नहीं था, जो वो कहते थे। पर जो नर्स होते हैं, कंपाउंडर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इन सब के जो व्यवसाय होते हैं, इन व्यवसाय वाले लोग होते हैं, फिर तो इन्हें एक समूह में रखा ही नहीं जा सकता था। लेकिन ऐसा तो नहीं था। वास्तव में कारक जैसे परस्पर अनन्य पूरी तरह से विपरीत नहीं थे, वे अति व्याप्त करते हैं, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं थोड़ा, और कुछ कारकों को जन्म देते हैं, कुछ अलग फैक्टर्स को ही वो लोग जन्म देते हैं। जैसे कि नर्स, कंपाउंडर और डॉक्टर्स का अगर हम लोग एक प्रोफेशन का एक ग्रुप लें, ऐसा तो है नहीं कि उन तीनों में कुछ कॉमन ही नहीं है एबिलिटीज। कुछ कॉमन है एबिलिटीज, तभी तो वो लोग मेडिकल लाइन में ही है। बस उनका प्रोफेशन अलग अलग है, कह सकते हैं कि उनकी स्पेसिफिक एबिलिटीज अलग अलग हैं, पर उनकी कुछ जनरल एबिलिटीज कॉमन है। यहाँ तक कि प्लस कुछ कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज कॉमन है, बट जैसे डॉक्टर्स में अगर देखा जाए तो जो सर्जन वगैरह होते हैं उसमें और ज़्यादा उनके अंदर स्पेसिफिक एबिलिटीज होती है, इसीलिए वो लोग बहुत अच्छे से सर्जरी कर लेते हैं। तो बस ऐसे ही देखते हैं, ये उनके क्रिटिसिज्म थे। नाउ वी विल सी मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। अब हमने बुद्धि का दो कारक सिद्धांत पढ़ लिया, अब हम लोग बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत देखेंगे। So Edward Lee Thorndike, an American psychologist, put forward the multi-factor theory of intelligence। मतलब कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, उन्होंने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत को सामने रखा है। He was a connectionist and associationist who mentally opposed the concept of general intelligence।
मतलब कि जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक थे वो एक संयोजनवाद थे और एक संघवादी थे, जिन्होंने मानसिक रूप से सामान्य बुद्धि की अवधारणा का विरोध किया था। He also proposed that there are specific stimuli and specific response। मतलब उन्होंने यह भी प्रस्तावित किया कि वे विशिष्ट उत्तेजना और विशिष्ट प्रतिक्रिया हैं। अब उन्होंने जो अपनी थ्योरी दी उसमें ऐसा था कि he viewed intelligence as nothing more than a convenient name for almost infinite number of actual or potential specific connections between these stimuli and responses। It is only a molecular view of intelligence that is atomistic। मतलब कि जो थॉर्नडाइक जी थे उनके अनुसार उन्होंने इन उत्तेजनाओं और प्रतिक्रियाओं मतलब जो स्टिमुलाई और रिस्पॉन्सेज हैं के बीच लगभग अनंत वास्तविक मतलब जो एक्चुअल या संभावित विशिष्ट कनेक्शनों के लिए जो स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं उनके लिए बुद्धि को एक सुविधा नमक नाम से ज्यादा कुछ नहीं देखा। उन्होंने यह बुद्धि मतलब उन्होंने ये बताया कि यह बुद्धि का केवल एक आणविक दृष्टिकोण है। According to the theory, intelligence is said to be constituted of multitude of separate factors or elements, each being a minute element or ability। A mental act involves a number of these minute elements operating together। मतलब कि उनके सिद्धांत के अनुसार ऐसा था कि बुद्धि को कई अलग अलग कारक या तत्व से मिलकर बनाया गया है। उनका ये मानना था जिनमें से प्रत्येक एक सूक्ष्म तत्व या क्षमता है। मतलब कि जैसा हम लोगों ने पहले दो कारक सिद्धांत देखा था उसमें था कि सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, पर थॉर्नडाइक ने जो अपनी जो थ्योरी निकाली उसमें ऐसा नहीं था। उनकी थ्योरी ये बताती है कि उसमें बहुत सारे कारक से मिला हुआ है, मतलब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यह मानसिक क्रिया में कोई सूक्ष्म तत्व या तत्व एक साथ काम करते हैं। उनका यह था कि बहुत सारे सूक्ष्म तत्व वो सब एक साथ काम करते हैं मिलकर। If any two tasks are correlated, the degree of the correlation is due to the common elements involved in the two tasks। मतलब कि उनका मानना वो कहते थे कि अगर ऐसा देखा जाए कि कोई दो कार्य हैं उन्हें सहसंबंध किया जाता है तो जो सहसंबंध की सीमा है या उसका जो स्तर है वो दोनों कार्यों में शामिल जो भी सामान्य क्षमता है उसके कारण होती है। इसके साथ साथ उन्होंने थॉर्नडाइक जी ने बुद्धि के चार कारक दिए, मतलब 4 फैक्टर्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस उन्होंने बताए अपनी थ्योरी में। एंड दीज फैक्टर्स आर लेवल, रेंज, एरिया एंड स्पीड। अब इसके बारे में हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज लेवल। लेवल को हिंदी में स्तर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा था कि लेवल रिफर्स टू द डिफिकल्टी ऑफ अ टास्क दैट कैन बी सॉल्व्ड। द लेवल इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंटेलेक्ट, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन परफेक्ट आइसोलेशन। मतलब कि थॉर्नडाइक जी का जो उन्होंने चार कारक दिए उसमें जो स्तर का मतलब ये था कि स्तर एक कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है कि किसी कार्य में वो मतलब कोई कार्य कितना कठिन है जिसे हमें हल करना है। हालांकि स्तर बुद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है, इसे पूर्ण अलगाव में नहीं मापा जा सकता है। Next is, if we think of all test items arranged in a sequential order of increasing difficulty, then the height that we can ascend on this ladder of difficulty determines our level of intelligence। मतलब कि यदि हम सभी परीक्षण वस्तुओं को अगर बढ़ती हुई कठिनाई के क्रम में व्यवस्थित करें तो कठिनाई की जो ये सीढ़ी है उस पर हम जितनी ऊंचाई चढ़ सकते हैं कि हम जितने जितने कठिन कार्य कर सकते हैं वो हमारी बुद्धि का स्तर निर्धारित करता है।
मतलब कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बुद्धि का जो स्तर है वो यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति कितने कितने सारे कठिन कार्य कर सकता है, उसके अंदर कितनी क्षमता है। नेक्स्ट इज रेंज। मतलब स्तर के बाद आता है रेंज, जिसे हिंदी में श्रेणी कहते हैं। रेंज refers to the number of tasks at any given degree of difficulty that we can solve. अब जो श्रेणी है वो किसी भी कठिनाई की मात्रा या डिग्री कह सकते हैं पर कार्यों की संख्या को संदर्भित करता है। कि मतलब अब हमने ये तो देखा कि हम कितने सारे कर सकते हैं कठिन कार्य, तो जो कितने जैसे उनकी जो संख्या है वो श्रेणी बताता है कि हम किस किस कार्य को हल कर सकते हैं आसानी से। Theoretically, an individual possessing a given level of intelligence should be able to solve the whole range of tasks at that level. मतलब कि सैद्धांतिक रूप से किसी दिए गए स्तर की बुद्धि रखने वाले व्यक्ति उस स्तर पर कार्य पूरी श्रृंखला को हल करने में सक्षम होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। Range is determined not only by level but also the breadth of experience and by opportunity to learn. मतलब कि जो श्रेणी है, रेंज है, वो हम न केवल स्तर से बल्कि अनुभव की चौड़ाई, कितना अनुभव किया हमने उस कार्य में, और हमें उस कार्य को सीखने के कितने अवसर प्राप्त हुए, इन सब से निर्धारित होता है। In intelligence test, range is represented by items of equal difficulty. मतलब कि बुद्धि परीक्षणों में समान कठिनाई की वस्तुओं द्वारा श्रेणी का प्रतिनिधित्व किया जाता है। Next factor we will discuss is area. Area मतलब क्षेत्र। Area refers to the total number of situations at each level to which the individual is able to respond. मतलब कि जो क्षेत्र है वो प्रत्येक स्तर पर उन सारी स्थितियों की कुल संख्या को संदर्भित बताता मतलब जताया करता है जिन पर व्यक्ति प्रतिक्रिया करने में सक्षम है। Area is the summation of all the ranges at each level of intelligence processed by an individual and it is highly correlated with level. मतलब कि जो क्षेत्र है वो एक व्यक्ति द्वारा संसाधित बुद्धि के प्रत्येक स्तर पर सभी श्रेणियों का योग है और यह स्तर के साथ अत्यधिक सहसंबंध है। मतलब कि ये लेवल के साथ इसे सहसंबंध देखा गया है। लास्ट जो फैक्टर है वो है स्पीड। स्पीड को हिंदी में गति कहते हैं। So speed refers to the rapidity with which an individual can respond to items. मतलब कि अब हमने देख लिया कि अगर हमें बुद्धि को मापना है, उसकी क्षमता देखनी है कितनी है, तो हमने स्तर देख सकते हैं, श्रेणी देख सकते हैं, उसके क्षेत्र के बारे में समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं किसी कार्य को करने के लिए उसकी गति क्या है। तो गति से तात्पर्य उस तीव्रता से है, मतलब कितनी तीव्रता से है जिसके साथ कोई व्यक्ति वस्तुओं पर प्रतिक्रिया कर सकता है। कि अगर कोई भी कठिन कार्य दिया गया है तो व्यक्ति उसको कितनी तेजी से कर ले रहा है, बहुत तेज कर ले रहा है कि मीडियम स्पीड से कर रहा है, किस गति से कर रहा है, वो हम लोग गति से जानते हैं। स्पीड एंड लेवल आर पॉजिटिवली रिलेटेड and speed is much closely bound up with level than other factors or attributes. मतलब कि गति और स्तर सकारात्मक रूप से संबंधित है और जो गति है वो अन्य कारकों या विशेषताओं की तुलना में स्तर के साथ बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि कार्य की गति अच्छी है तो बुद्धि का स्तर भी अच्छा होगा। We should not therefore emphasize speed too much in our intelligence test. मतलब इसलिए हमें अपनी बुद्धि परीक्षणों में
गति पर बहुत अधिक जोर नहीं देना चाहिए। मतलब गति से पहले हमें ये देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति, अगर उसका हम लोग बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं, उसकी बुद्धि का परीक्षण कर रहे हैं, तो ये देखना चाहिए कि उसकी बुद्धि का स्तर क्या है। फिर हमें उसकी, सबसे पहले तो उस स्तर के बारे में हमें जानना चाहिए, फिर उसकी श्रेणी के बारे में, फिर उसके क्षेत्र, उसकी बुद्धि के क्षेत्र के बारे में, और आखिरी में हमें ये समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि की गति क्या है, कि वो किसी भी कार्य को करने में कितना वक्त लगा रहा है। Now we will see that Thorndike also proposed three forms of intelligence. First is abstract intelligence, second is concrete intelligence, and third is social intelligence. मतलब